अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। सियालकोट का इलाका गौसपुरा में मैं इस टाइम मौजूद हूं, जहां पर इशफाक नामी शख्स जो कि 4 बच्चों का बाप है, बहुत मेहनती और बहुत ही ईमानदार शख्स अपने मोहल्ले में जाना जाता है। वो शख्स अचानक से फौत हो जाता है, उसका कफन दफन हो रहा होता है कि मोहल्ले से किसी को शक होता है कि ये तिब्बी मौत नहीं मरा बल्कि इसको मारा गया है। इतने में मोहल्लेदार पुलिस को कॉल करता है। मौके पर पुलिस आती है। इस मैयत को दफनाने के लिए ले जाने लगे ही थे कि पुलिस ने इस मैयत को अपनी तहवील में लिया। तहकीकात के बाद इस बात का इल्म होता है कि ये शख्स तिब्बी मौत नहीं मरा बल्कि इसको मारा गया है। वो कौन है जिसने इसको मारा और इसकी बीवी कहाँ थी और क्या कर रही थी? क्या इस कातिल में मुलव्विस पाई गई? ये सब आपको दिखाते हैं। इशफाक के 4 बच्चे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात उन मासूमों से करवाएंगे और उस रोती हुई माँ से करवाएंगे जो रोज दरवाजे में बैठकर अपने बेटे का आज भी इंतजार कर रही है। इशफाक के घर पर हम आए हैं, जहाँ पर उसके 4 बच्चे अपने बाप की राह तक रहे हैं। बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है कि इशफाक आज फिर नहीं आया। उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक के 4 बच्चे मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और वालदा हैं। वालदा से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी क्या हाल है आपका? ठीक है। माँ जी क्या हुआ था? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬਸ ਲੜਦੀ ਘੁਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। मैं तुर जानी हूँ चुप करके। सुलह करा के? नहीं मैं सुलह नहीं, मैनू नहीं पता, मैं तुर जानी हाँ। अच्छा। हाँ। फिर अक्सर ऐसे ही होता रहता था, घर में झगड़ा रहता था? मैनू की पता जे इंजी घोलदी ही, लड़दी ही। माँ जी मारदी भी सी अपने खावद नू? मारदी होनी, मारदी, गाला कढ़दी। माँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕੰਮ। ਆਪਸ ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੰਜੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਇੰਜੀ ਘੁਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜੀ। 13 ਸਾਲ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਏ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਦੀ ਲੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਬੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਵਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਭਾਬੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੋਬੀਆ ਤੇ ਵਕਾਸ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾ ਪਤਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਜੇ। ਆਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਟਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ कॉल की थी? अच्छा क्या कहा था? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
मेरा पुत्र तोड़ गया इन्हें मार चढ़िया जाते कीती है ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਫਾਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿੱਛੇ फिर मैं आई हाँ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ मैं वेख्या मेरा पुत्र इतने लम्मा पिया है ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ मंजी ते ਅੱਛਾ इत्ते ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੋਬੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ये इत्ते बैठी ही ਬੀਵੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਜੀ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ आंधी बह रही है दंदला पैंदियां ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਹੈ मैं पूछया आके मैं कहा मेरे बेटे नु की होया ਹਾਂ आंधी है ना के सुता ते वो सौ गया मुना आंदा ही ओदा तोड़ जा मैं उस कमरे तोड़ गई हां ਹਾਂ ते ये सुता ही सौ गया ਅੱਛਾ इन्हें जुल्म कीता ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मनु नहीं पता ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मनु पता हूं पता लगा मनु हुन पता लगा जो रौला पै गया जब बाहर मनु नहीं पता सीधी सादी देहाती माँ है क्रिमिनल माइंड और क्रिमिनल चीज़ों को ज़ाहिर है नहीं समझती। ये इशफाक के 4 बच्चे हैं जो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। इन बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आयजा। आयजा। आयजा के पापा कहाँ हैं? पता है आयजा को? किधर है बोलो? आयजा के पापा कहाँ हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? अरमान। अरमान। अरमान स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 2 में हो। पापा किधर है? पापा फोत फोत हो गए? क्या हुआ था? ये 2 दिन पहले हल्के बात की थी तो किन्होंने? मामा ने और विकास ने। क्या बात हुई थी बेटा? 2 दिन पहले उत्थे रल के गल की थी ते रात दे टाइम पापा आए हैं ते पापा किराया दे के गए ते दुकान पे हैं ते उत्थे खलोते हैं ना भाई नु कहंदे हैं आज मैं नहीं घर जा मैनू डर लगदा। कौन कह रहा था ऐसे? पापा। पापा किसको कह रहे थे? वो पठान है ना उसको कह रहे थे मैं घर नहीं जाना डर रहा था वैसे कोई मार देगा तो वो नहीं थे आ रहे तो वो पठान लेकर आया उसने घर छोड़ दिया तो मामा ने इस पापा को चाय पिलाई थी तो रात को हम सो गए थे बाद को कभी विकास आया था तो फिर इन्होंने रल के ये मारा था। अच्छा, पापा को मामा ने चाय पिलाई थी तो उस टाइम वकास घर पर ही था? नहीं, बाद में आया था। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर उसके बाद पापा सो गए थे? जी। फिर आप लोग कहाँ थे? वो सोए हुए थे दूसरे कमरे में। आप जाग रहे थे? अच्छा, फिर आप जब सुबह उठे तो फिर क्या हुआ? सुबह में उठे थे तो उस पर पढ़ने गए तो हम आ रहे थे तो उधर ना चाय कह रहा था पापा को क्या हुआ मैंने कुछ भी नहीं तो वो कहते हैं वो तो फोत हो गया। किसने कहा था ऐसे? चाचू उसका नाम। अच्छा, किसी ने कहा था, ठीक है। फिर तो हम ऊपर आए थे तो उधर ये इधर मंजी पे थे और उन्होंने मंजी पकड़ इधर लाई थी तो वैसे बैठ रहे थे मामा तो बाद ना बोली आंटी ने कहा था इनका मुंह खुला हुआ है तो टाकी बंद तो ना टाकी पैर में बनी थी तो मुंह पर। अच्छा, मुझे बताओ आपको पापा याद आ रहे हैं? आपको पता है ना आपके पापा को किसने मारा है? पता है आपको किसने मारा है? विकास ने तो वकास ने और माँ ने। होंठ साथ नहीं दे रहे बोलते हुए कि माँ ने। ये एक मासूम सा बच्चा है, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया, इसको अच्छाई का नहीं पता, इसको बुराई का नहीं पता, लेकिन जो इसने देखा है, जो इसने समझा है, उसके मुताबिक इसने बोला है कि मेरी माँ ने, लेकिन माँ का लफ्ज़ मुंह से नहीं निकल रहा। अच्छा बेटा, ये बताओ अब क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हो? तो ये जैसे पापा के साथ किया तो लोग कैसे है पापा याद आते हैं? अब किसके साथ सोते हो रात को? दादी के साथ। दादू के साथ? बेटा आपका क्या नाम है? मीरब। मीरब, आप कौन सी क्लास में हो? 1 में हो। मीरब, आपने कुछ देखा था जिस रात पापा फोत हुए थे? नहीं। सो रही थी कि जाग रही थी? सो रही थी। पापा कहाँ हैं आपके? पापा हाँ। वो उन्होंने मार दी। किन्होंने? सोबिया ने तो मामा ने।
सोबिया ने, मामा ने, सोबिया जो है ये पापा को मारती थी, तंग करती थी, क्या कहती थी? गले निकालती थी। गालियां निकालती थी। तो पापा क्या करते थे फिर? पापा कहते थे जाओ सो जो जाकर, तो फिर भी नहीं तो सोती जाकर। पापा मना करते थे कि ना करो, झगड़ा ना करो। ये मासूम बच्चे हैं जिन्होंने असल कहानी घर की सुनाई है आपको। सिफाक मुलजिम वकास जिसने सोबिया के साथ मिलकर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। चलते हैं थाने और जाकर उससे बात करते हैं। टीम पुकार जा रही है जी थाना नेकापुरा में, जहां पर सिफाक मुलजिम को बंद किया हुआ है हवालात में। सवाल जवाब करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मुलजिम से सवालात और जवाबात करते हैं कि असल हकायक क्या है। क्या है पूरा नाम? वकास अली। वकास अली जी। वकास कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल। क्या करते हो? बॉक्सिंग ग्लव्स का काम। ठीक है। सोबिया की कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। जी। तुमसे बड़ी है? जी। कितने साल? 5 साल। 5 साल। सोबिया का खामद क्या नाम है उसका? शफाक। इशफाक जी। उसकी कितनी उम्र है? उसकी होगी कोई 40-45 होगी। क्या करता था? मजदूर, मिस्त्री में काम। अच्छा आदमी था? जी। बहुत अच्छा था। जी। आपका क्या लगता था रिश्ते में? कज़न, खाला का बेटा। सकी खाला का बेटा? जी। खाला का बेटा भाई होता है ना? जी। और भाई की बीवी क्या होती है? भाभी। भाभी। जी। तो सोबिया आपकी क्या लगी? भाभी। भाभी। रिश्ते में जी। जो जायज रिश्ते हैं, जी। जो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। सही बात। सही बात है। जी। गलत बात क्या हुई है? गलत बात ये हुई है तो मैंने ना नजायज तलक से उसके साथ- किसके साथ? सोबिया के साथ। कब से? वही 6 महीने से। कैसे बने? आना जाना था घर में, ठीक है, लेके जाना बाइक के ऊपर, ठीक है, तो बाइक पे लेकर जाना? हाँ दवाई लेने को। किसको? सोबिया को या बच्चों को। ठीक अच्छा। है, दवाई लेने जाना, ठीक है, फिर आस्ता आस्ता हमारी बात बनी। शुरू कहाँ से हुई थी बात? मुझे अंदर की बात बताओ शुरू कि यहीं बात थी। शुरू कहाँ से हुई शुरू थी? यहीं- उसने कुछ किया था या तुमने कुछ किया था? शुरू यहाँ थी हुई थी, ये देखना पंजाबी में बात करना। हाँ हाँ बोलो, पंजाबी में बोलो। शुरू तो ऐ हुई ही ते जरा ना सी मतलब जान जिथे भी जाना इकट्ठे जाना। नहीं, इकट्ठे कैसे जाना? उसका खामद क्या कहता था? कुछ भी नहीं, उसने बोलना जाओ कि ना अवकाश को ले जाओ साथ। ठीक अच्छा। है, दवाई ले आओ उथों, ठीक है, ते जाके ते दवाई शवाई लियानी, उन्हें भेजना करना, ठीक है। जो भी काम होना फिर उन्हें कहना करना तू अवकाश नूं कह ते जरा ना दवाई ले आया। ठीक है, भाई समझ के। हाँ जी, भाई छोटा भाई समझ जी, के। जी। अच्छा, फिर? उस तो बाद जरा ना फिर असी जाना करना ते साढ़े थोड़ी बहुत गल हुई, ठीक है। ठीक है, तो फिर उस तो बाद कैसे हुई बात भाई? वही पूछ रही हूँ ना, बात कैसे हुई? वो गल है जी ये ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ। अच्छा। ठीक है। अच्छा। आस्ता आस्ता फिर असा गल हुई साड़ी। तुमने क्या कहा जब उसने, चलो बकौल तुम्हारे हाँ। खातून ने कहा, सोबिया ने कहा कि मैं तुम्हें पहले मैं- पसंद करती हूँ। हाँ, पहले मैं क्या नहीं मैं नहीं आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फिर अच्छा। आस्ता आस्ता साड़ी फिर थोड़ी बहुत आपने ये नहीं कहा कि आप मेरी भाभी हो? मैंने कहा ठीक क्या है। कहा? मैंने कहा तुम भाभी है मेरी तुम। अच्छा। ठीक है, आस्ता आस्ता बाद जरा ना उसके खामद क्यों नहीं बताया? हाँ नहीं क्यों? बताया, नहीं बताया मैं, क्या वजह है? बस वैसे ही जरा ना आस्ता आस्ता जरा ना गल थोड़ी चिर हुई है, फिर हाँ। मैं दोस्ती कर ली। अच्छा, जी। राजी थे ना तुम? जी। ठीक है, फिर? उस तो बाद असी जरा ना गए हैं जो मतलब घर ਉਹਦੇ राती गपशप कहाँ होती थी? गपशप घर ही किसके घर? उसके अच्छा, तो उस टाइम इशफाक कहाँ होता था? काम पर तुम काम पर नहीं होते थे? होता था, मैं मोहल्ले में काम करता। वापस आ जाते थे? जी। कॉल करके बुलाती थी? नहीं, वो उसके पास नहीं सब मोबाइल है। हाँ। वो शफाक के पास ही मोबाइल था, ठीक है। अच्छा। तो वैसे ही टाइम टेबल था एक। सेटिंग की भी थी टाइम की? हाँ जी। क्या सेटिंग थी? टाइम तो यही सी कोई 12, ठीक है, 11-12। सुबह के? जी। ठीक है, कितनी देर बैठते थे? यही कोई घंटा डेढ़। घंटा डेढ़ बैठते हाँ थे? जी। एक बच्चे कहाँ होते थे? बच्चे साथ ही होते थे, खेल रहे होते थे, छत पर चले जाते थे, बाहर साथ ही खेलते थे। अच्छा, ठीक है। फिर कत्ल क्यों किया? मैं क्या सी तू जरा ना उन्हें तलाक दे छा। किसको कहा था? शफाक को। इशफाक को आपने कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो? ठीक। उसने क्या कहा? उन्हें कहा नहीं मैं नहीं दे रही, ठीक है, तो फिर जरा ना उसने पूछा नहीं क्यों भाई तुम क्यों कह रहे हो कि मेरी बीवी को तलाक दे दो? नहीं उन्हें किया है। पूछा? हाँ। फिर? उन्हें किया नहीं मैं नहीं तलाक देनी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 81 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 81 की गोलियों पे भी आएंगे, पहले मुझे पिछली कहानी सारी सुनाओ कि तुमने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। कितना बड़ा तुम्हारा जिगरा है कि तुम भाई को कह रहे हो कि मेरी भाभी को तलाक दे दो, मैंने इसके साथ ताल्लुकात मजीद इस्तवार करने हैं, यही बात थी? जी। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि इशफाक को इस बात का पता था कि तुम उसके पीछे से क्या करते हो उसकी बीवी के साथ? नहीं पता था? उसने कभी अपने घर आने से तुम्हें मना किया था? नहीं। सोबिया ने कभी मना किया था? नहीं। इस हरकत के बाद जब तुम उसको कह रहे हो कि अपनी बीवी को छोड़ दो, तब मना किया था? फिर मना किया। मना किया था, क्या कहा था? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फिर तुमने क्या कहा? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਣਾ मैं आऊंगा, ये जवाब दिया था। फिर उसने क्या कहा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। निकल गए? जी। अच्छा, फिर उसके बाद प्लानिंग बनाई आपस में? जी। आपने बनाई या सोबिया ने? नहीं मैं बुलाई। बात सच्ची करनी। मैंने बनाई थी। आपने बनाई थी। क्या कहा था सोबिया को? मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਸ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ किस तरह? ਮਤਲਬ 81 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ 81 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। क्या वजह है? मुझे बात नहीं समझ आ रही। मैंने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी जब तक तुमने मुझे बात नहीं बतानी। वो 4 बच्चों की माँ है, को कवारी लड़की नहीं है, तुम कवारे हो। क्या वजह है? सोबिया ही क्यों? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ये वजह थी? जी। सोबिया और इशफाक जिंदगी अच्छी थी उनकी तुम्हारे आने से पहले तक? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜੂਆ कौन? ਸ਼ਫਾਕ अच्छा। ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੜਨਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ शौहर उसका सका नहीं था, तुम सके थे? ਉਹ जो ਮਾਰ उसका महरम है वो सका नहीं था, तुम सके थे? ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ अच्छा, फिर तुम बचाते थे? ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ नहीं, मार उसको पड़ती थी, तकलीफ तुम्हें होती जी। थी? हाँ, ਹਾਂਜੀ क्या? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ दुख होता था? ਹਾਂਜੀ कत्ल वाले दिन क्या टाइम था, क्या मंसूबा बनाया? टाइम सी 12 बजे में आया था ठीक है 12 बजे आया था तो मेरे ख्याल 3 बजे चला गया था ठीक आप? हाँ जी। अच्छा, क्या किया जाके? जाके पहले दोपहर के 12 बजे थे? नहीं रात के रात के 12 बजे थे। क्या किया था? 81 की गोली दी थी किसको? शफाक को कैसे? चाय के बीच आपने खिलाई थी जी कि सोबिया ने? सोबिया ने दी थी मैंने ठीक है आपने सोबिया को लाके दी? दी। कितनी? 8 8? हाँ 7 8 क्या कहा था आपने जाके? मैंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ कितनी की थी? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 300 ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ कितनी? 8 8 गोलियां जी। 81 की? जी। अच्छा, वो आपने क्या किया? उसको चाय में मिलाया? जी सोबिया को दी जाके? जी। फिर ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ चाय में? चाय में फिर बस वो तौलिए के साथ मैंने वो सो गया? हाँ जी जाहिर है गोलियों का असर था तो वो सो गया। जी। फिर सोबिया ने आपको कॉल करके बुलाया कि खामद सो गया मेरा? जी फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पेट पर कौन बैठा था इशफाक के? कौन पेट पर कौन बैठा था? पेट पर बैठ के मुंह किसने दुबाया था? मैंने तो बताओ ना, ये किया है ना? हाँ, मैंने तो बताओ ना फिर मैंने क्या किया। किया था? ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ हाँ। ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ किसके साथ? तौलिए के साथ तौलिए के साथ मुंह बंद किया था? जी बाजू किसने पकड़े थे? बाजू सो लिया बाजू सोबिया ने पकड़े थे। और टांगे? टांगे ऊपर मैं बैठा हुआ था टांगे किसी ने नहीं पकड़ा आवाज नहीं निकाली उसने? नहीं। मजामत नहीं की? नहीं। चीख पुकार नहीं हुई? नहीं कैसे ये तसल्ली की कि खामद मर गया इसका? तसल्ली करते हो ना, हाँ जी मुलजिम हो ना, कैसे तसल्ली की? ਸਲੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਸੀ ਹੈ कैसे देखा? ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ नब्ज चेक करनी आती? ਹਾਂ ਨਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹਲਾਇਆ ਚਲਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ हाँ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਆ ਗਿਆ नहीं हिल रहा था। नहीं। फिर मैं चला गया फिर तुम उतरे ऊपर से नीचे? हाँ जी। फिर मेरे घर दौड़ गया फिर अपने घर चले गए? जी। और सोबिया वो अपने घर अपने घर चले गई? अपने घर से मुराद
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ अच्छा उधर ही। हाँ जी। फिर उसके बाद ਬਸ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ फिर ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। जनाजे के टाइम वापस आए। हाँ जी। रात सो गई जाके। ਹਾਂਜੀ जाहिर है 12 बजे के गए, 3 बजे तक ये काम किया तुमने, बंदा मारा, बंदा खा लिया, शादीशुदा औरत का शौहर खा लिया तुमने, फिर सो गए घर जाके। जी। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ। नींद आ गई रात को? ਨਹੀਂ, फिर ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਬਾਤ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਤ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। फिर ਤੇ ਬਸ फिर कफन दफन भी किया? ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ तुम भी मौजूद थे ਜੀ। जनाजे में? ਨਹੀਂ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। आहो बका और रोने वालों में तुम शामिल थे? ਹਾਂਜੀ हाँ? हाँ जी। क्या कर रहे थे वहां बैठे? बस देख रहे थे कब जाएंगे ले। क्या देख रहे थे? मैं देख रहे थे बस कब जाएंगे लेके। डेड बॉडी को दफनाने कब जाएंगे? जी। रो क्यों रहे थे? रो रहे से बस दिखावे आस किसको? बस जोन से रिश्तेदार से। लोगों को दिखाने के लिए रो रहे थे जी। ताकि मेरे पे शक ना पड़े। जी। फिर पुलिस ने कहां से पकड़ा? कैमरे के बीच आया था। पकड़ा कहां से पुलिस ने? उथू। जहां पर लोग बैठे रो रहे थे? जी। ठीक है, अब मुझे जरा गौर से मेरे सवालों के जवाब दो। तुमने किया वो तुमने कहानी सुना दी। जो खातून अपने 4 बच्चे पैदा किए इशफाक के साथ, ठीक हो गया? जी। निकाह का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है जो अल्लाह ने बनाया है, बड़ी ताकत है निकाह के रिश्ते में। जिस मर्द ने निकाह किया और उसके जिस्म से 4 बच्चे पैदा किए, उसके बाजू पकड़ के वो तुमसे मरवा रही है, तुम्हारी सकी वो कहां से है? सोच के जवाब दो मुझे। ज़ेन तो तुम्हारा क्रिमिनल है ना, काम तो तुमने पूरा डाल दिया है, गोलियां खिला दी, बंदा मार दिया, बैठ के रोना धोना शुरू कर दिया, क्राइम तुमने पूरा कर लिया। मुझे सोच के जवाब दो इस बात का कि जिसने अपने शौहर में से 4 बच्चे पैदा किए हैं, उसका वो बाजू पकड़ के बैठी है कि इसको कत्ल कर दो, तुम्हारी सकी कहां से है सकी? नहीं है तो गल है नहीं। हाँ, है तो गल है नहीं। क्यों नहीं ये ज़हन में आया? कैसे सकी हो सकती है तुम्हारी? बस नहीं, जेन नहीं काम किया उस टाइम। हाँ, जेन नहीं काम किया उस टाइम। अगर तुम्हारी सकी होती तो तुमसे ये काम करवाती? नहीं, हाँ, ये हथकड़ी तुम्हें किस वजह से लगी है? मैं मुजरिम हूँ। मुजरिम हो। जो काम किया वो किसके कहने पे किया? अपनी मर्जी पे। अपनी मर्जी से किया। खातून का कितना लेन देन था बीच में? थोड़ा ही था बस, 81 गोलियां देने को। देने का मंसूबा बनाया ना, पूरी बराबर की शरीक है वो, तुम्हारे साथ थोड़ी नहीं है। जी। 4 बच्चे यतीम कर दिए, जी। क्या कसूर? बस गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हो गई, 4 बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी तुमने। माँ चले गई जेल में, बाप चला गया अल्लाह के पास, बच्चे रुल गए, लवारिस हो गए, क्या कसूर था? गलती से बात पूरी नहीं होगी, बात पूरी करो। उन 4 बच्चों का क्या कसूर था? उन्होंने का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा। बाप बनोगे तुम उनके? जी। हाँ जी। कैसे? जेल किससे? नहीं। फिर कहां से? सवालों का जवाब देना है। जेल में से बाप बनोगे? वारिस बनोगे? जवाब दो, वारिस कैसे बनोगे? बाहर आऊंगा तो बनूंगा। बाहर आओगे तो बनोगे। उतनी देर उनका कौन वारिस है? उनके भाई चाचू वगैरह। बाहर आ सकोगे? पता नहीं। हाँ, पता नहीं। जो किया है वो क्या किया है? कत्ल किया। कत्ल करने के बाद क्या होता है? सजा होती है। सजा कैसी होती है? सजाए मौत होती है। सजाई मौत होती है। मोहब्बत किधर गई? आशिकी किधर गई? माशूकी किधर गई? सब होता। ये आशिकी माशूकी किसी कवारी लड़की से लगाई होती तो शायद निकाह के रिश्ते में तुम बंद ही जाते। तुमने आशिकी उधर लगा ली जो तुमसे भी 5 साल बड़ी है। दिमाग काम नहीं किया था, या उसने कुछ ऐसा पट्टी पढ़ाई हुई थी, या नहीं, बटरिंग बस- बहुत अच्छी होती थी? नहीं, बस दिमाग जरा ना दिमाग सोचा नहीं एक पल के लिए? बाद च बड़ा सोचा, बाकी बाद च मैं बड़ी पछताया। मेरे को गलती बड़ी बड़ी हो गई है। गलती मैं घर बैठा था, बाकी मैं पछताया बहुत ज्यादा। अगर जिंदगी में कभी आगे क्या फैसला होता है, क्या सजा होती है, ये तो इन्वेस्टिगेशन और मामलात के बाद होगा और यकीनन इंसाफ होगा। अगर जिंदगी में कभी तुम्हारी बारी ऐसे आ गई कि सोबिया तुम्हारे बाजू पकड़ के किसी तीसरे बंदे से तुम्हें कत्ल करा रही हो, फिर क्या होगा? जिंदगी है ना, मकाफाती अमल है ना, जो बोओगे वो काटोगे। सारी बात है, जैसी करनी वैसी करनी। हाँ, फिर क्या होगा? होगा ऐसा? शायद होगा। हाँ? होगा। होगा।
तुमने किया है ना? जी तुम्हारे साथ होगा? तुम्हें लगता है ऐसा ਜ਼ਾਹਰੀ होगा? ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ फिर आशिकी किधर गई? ਆਸ਼ਕੀ ਖਤਮ खत्म हो गई? ठप हो गया किस्सा? जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, पुलिस से बात करते हैं। मोहम्मद सलमान लियाकत साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है और मुलजिम को कहां से इन्होंने गिरफ्तार किया, ये हम जानते हैं सलमान लियाकत साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब, कहानी कहां से शुरू हुई? पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है? जैसा कि आपको पता है कि एक हफ्ते पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बीवी ने अपने एक आशना के साथ मिलके, जिनके पिछले कुछ अरसे से नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे, उसने अपने खावंद को कत्ल कर दिया। पुलिस को जैसे इतला मिली तो पुलिस ने फौरी तौर पे इन दोनों लोगों को, जिनके ऊपर शक था मुद्दई का, उनको अरेस्ट कर लिया और साइंटिफिक तरीके से हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन ली, इनकी CDRs हमने अप्लाई की, वो ली, इनका एनालिसिस किया गया। बाकी जगहों से खुफिया और अलानिया जो है वो इनकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इन लोगों ने जो है 6 महीने से इनके आपस में ताल्लुकात चल रहे थे और वक़ुआ इन्होंने बेसिकली इस तरीके से किया कि 81 की जो गोलियां होती हैं जिनसे नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो 8 गोलियां उसने खावंद की, बीवी ने खावंद की चाय में मिला दी, वो सो गया और फिर उसका जो है वो गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया गया। तो इसमें हमने जो हमारी PFSC की टीम भी मौके पे पहुंची, उन्होंने सारा साइंटिफिक एविडेंस उसको कलेक्ट किया और वो हमने वहाँ पे जमा करा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट पुलिस ने इस केस को विदिन 2 डेज़ जो है इसको फिगर आउट कर लिया, असल मुल्ज़मान को पकड़ लिया। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा वो ये होगा कि हम केस जो है वो स्ट्रॉन्ग केस बनाएं ताकि इसकी प्रोसिक्यूशन हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा कि केसेस में मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, जब उनका ट्रायल होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है क्योंकि एविडेंस प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं होता, कलेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सही, और उसकी कोई रिलेशन नहीं होती। तो हमने इस केस में ये फोकस की है, मैंने IAS को भी डायरेक्शन दी है कि हमने केस को बहुत स्ट्रांगली और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इसको प्रोसिक्यूट करना है ताकि मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सके। बिल्कुल ठीक है। इस केस की जब हम बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं सलमान साहब कि इसमें टोटल मुल्ज़िमान कितने हैं? इसमें टोटल 2 मुल्ज़मान हैं। एक तो उस खावंद की जो बीवी है वो, और एक उसका जो कज़न भी था जिसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो वो 2 लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर, दोनों ने प्लानिंग करके इसको कत्ल किया। ठीक है। कितने अरसे से इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे? आप लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी नई चीज़ें सामने आती हैं, मुल्ज़िम ब्रेक होता है, तो कितने अरसे से थे? और इनके तकरीबन 6 माह से ताल्लुकात थे। ठीक है। और इनकी जो शादी थी वो पिछले 12 साल से थी, इनके 4 बच्चे भी हैं। और लेकिन ये फिर जो है उसने मिलके उसके साथ उसको कत्ल कर दिया क्योंकि इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि ख़वातीन की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़्यादती की है या मैं इसको इस तरह से फंसा दूंगी कि ये मुझे मिसयूज़ करता था। इस केस को जब हम स्टडी करते हैं तो आपको कुछ ऐसा सामने आया है, कुछ नज़र आया है कि खातून की तरफ से कोई प्रेशर था इस मुल्ज़िम पर, यानी कि वकास पर? नहीं, इस तरह का अभी तक कोई एंगल नहीं आया क्योंकि वो फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती और इस तरह का जो संगीन इसने वकूआ किया, अपने खावंद को ही कत्ल कर दिया, वो इस तरह का जो हीनियस स्टेप है वो ना लेती अगर इस तरह का कोई मामला होता। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी ऐसा कोई मामला नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। क्या इनके DNA करवाए गए हैं, मेडिकल करवाए गए हैं? जी, इनके मेडिकल करवाए गए हैं। और जी मेडिकल करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान लियाकत साहब, क्या कहेंगे, जब हम क्राइम को देखते हैं तो क्राइम मुख्तलिफ किस्म का हो रहा है, कहीं पर डकैती हो रही है, कहीं पर हम रेप के केसेस देख रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ इकसाम के साथ साथ जो रेशो बढ़ती नज़र आ रही है वो ये है कि ख़वातीन जो है, शादीशुदा ख़वातीन, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं और अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को मुख्तलिफ अंदाज में मर्डर करवा देती हैं और फिर बैठ कर उसी के जनाजे पर रो भी रही होती हैं, जैसे कि आज के प्रोग्राम में हम बात भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किसकी वजह है, किसका फेलियर है? इसमें आप क्राइम को 2 हिस्सों में मेजरली डिवाइड कर सकती हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन का है। जहाँ तक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात है, जो आपने डकैतियों की बात की और रॉबरीज हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, इसमें तो पुलिस की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो और जो भी डकैतियाँ हो रही हैं, जो डकैत हैं, जो रॉबरीज कर रहे हैं, उनको ट्रेस किया जाए, उनको पकड़ा जाए और लोगों की रिकवरीज की जाए। तो इसमें तो हमने इफेक्टिव जो है वो हमारी पेट्रोलिंग भी हो रही है,
रोज़ हम रैंडम बेसिस पे नाके भी लगाते हैं और इस पे हमने मल्टीपल जो है पिछले 2-3 माह में हमने बहुत ज़्यादा गैंग्स भी पकड़े हैं ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिकवरीज भी की हैं Okay. और इस पे मज़ीद भी काम हो रहा है और ये एक आपको पता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है और इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद भी काम कर रहे हैं। सेकंड, जो आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए क्राइम अगेंस्ट पर्सन होता है उसमें डिफरेंट रीजंस होती हैं कत्ल की। अक्सर कत्ल ऐसे होते हैं जो पुरानी दुश्मनियाँ होती हैं, तो जो पुरानी दुश्मनियाँ होती हैं तो उसमें तो पुलिस रोल प्ले कर सकती है कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से लोगों को बुला के उनको पाबंद ज़मानत करवाएं, उनको अदालत में पेश करें जहाँ पे वो अपनी ज़मानत देंगे और कि वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे ताकि कोई नुक्स अमन का जो है वो खदशा ना हो। लेकिन जो ये पर्टिकुलर केस है कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में नाचाकी चल रही है या किसी और वो अपने आशना के साथ मिलकर जो है वो कोई स्टेप उठा रही है, तो इस केस में पुलिस कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले हमारे नोटिस में नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो इसमें तो ओवरऑल घरेलू मामला है, चार दीवारी के अंदर मामला है ठीक है। और पुलिस इस तरह से हर चार दीवारी के अंदर जो मामला होते हैं उनमें इंटरफेयर कर भी नहीं सकती और करना भी नहीं चाहिए, अलाउ भी नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये तो ओवरऑल एक माशरे का, सोसाइटी का एक फिनोमेना है जो कि हम रोज़ बरोज़ जो है ये मामला हम देख रहे हैं। एक पॉइंट डिस्कस करना आप भूल गए इस केस की जब हम बात करते हैं, तो सलमान साहब अभी प्रोग्राम से पहले जब हम ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर बात कर रहे थे कि जो केसेस हैं उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करके जब आप लोग पेश करते हैं फिर उसमें सज़ा होती है और फिर जो एक सज़ा होती है मेरे ख्याल से वो बाकियों के लिए बड़ी इबरत होती है कि हमने ऐसा नहीं करना है। एक मोहल्ले में अगर फॉर एग्जाम्पल 10 घर हैं एक गली में और 10 घरों में 10 खवातीन भी हैं, 10 शौहर भी हैं, अब एक खुदा न खासा अगर कोई ऐसा केस हाईलाइट होता है तो बाकी 9 को कम से कम ये समझ आ जाती है कि हमने ये हरकत नहीं करनी। जी जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीइंग एसपी इन्वेस्टिगेशन मेरा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मेरा मेन फोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि केस जो है उसको स्ट्रांगली प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया जाए और फिर वो जो एविडेंस कलेक्ट किया गया जो ओपिनियन ऑफ आईओ है उसमें कॉजेशन हो, कोरिलेशन हो, प्रॉपर ओपिनियन शुड बी फॉर्म बैक बाय एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस जिसमें हमारा ऑक्यूलर एविडेंस भी होगा, साइंटिफिक एविडेंस भी होगा। तो इंशाल्लाह हम इस केस को मजबूत बनाएंगे एंड वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट कि इनको जो वाकई करार सज़ा है वो कोर्ट की तरफ से मिले ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये इबरत का निशान हो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से हमें सबक ये मिलता है कि बहुत से घरों की खराबी की जो बेसिक वजह है वो सामने ये आती है कि शौहर बिजी है और उसने अपनी बीवी के ज़रूरियात और मामलात को किसी न किसी और के सपुर्द कर दिया है। जैसे कि हम वकास की कहानी आपके सामने रखी और वकास सिखाया कि जो कि उसकी बीवी को दवाइयाँ भी लेकर देता था और बाहर जाकर उसके काम भी करता था, जहाँ से घर में खराबी पैदा हुई, नाजायज़ ताल्लुकात का आगाज हुआ और फिर ये कहानी इस नहज तक आ पहुंची कि इशफाक को वकास ने कत्ल ही कर डाला। तो हर वो शौहर जिसका घर आबाद है उसकी बीवी उसकी बेसिक जिम्मेदारी है जो उसने खुद पूरी करनी है, ना कि किसी कजन ने। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।